Hello students, you are with Bindu Chaudhary and we are continuing our third chapter of our past, part third. The name of the chapter is Ruling the Countryside. Today we are taking its third chapter, but before taking third part, first we will recall about the previous one, how the indigos and this blue color ruins the life of the Indian peasants, how the demand of the indigo turns to the Britain itself. यूरोप में बहुत ज़्यादा हो रहा था, but why in Europe? Why not in other countries? But we noticed that where the supplement of indigo was there, but the prices are also minimum. But what is the main thing, students, here? The main thing is indigo, the cultivation, the production of the crop of indigo. It seems to be so much ruinful for the purpose of the peasants. How it? We will continue it. So start with me. See here, we are taking here Britain turns of India. Why Britain turns of India? Because of the indigo crop. Okay. Indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. Yes, this was the reason why this Britain turns for the India, because the cultivation of the indigo is so much expanded rapidly, and this one is the result for the world market for the purchasing of the indigo. In the year 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. See the proportionate 30%. The percentage 30% of the indigo was imported from India to Britain. So the ratio is very high, and we notice that indigo cultivation is so much rapidly increasing in the area of Bengal. See here, after this indigo cultivation, many peasants wanted to take revolt from this one, and this one is the picture, the slave revolt in Saint Domingue. August 71 का picture है ये, and this picture was painted by January Sklodowski. See this one, कि हमारे यहाँ के जो peasants हैं, किसान हैं, वो slave की तरह रहने लग गए थे, मजदूरों की तरह, बंधुआ मजदूर जिसे हम कहते हैं. They say presumed to be स्लेव, और उन्होंने एक तरह से रिवोल्ट लेना शुरू कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर द पर्पज ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन. See, in the year 1810, the proportion had gone up to 95%. See the ratio increasing day by day for the import of indigo from India to Britain. The ratio came to 95% in the year 1810. As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. See what's result came in that time, and when the percentage raised from the 30% to 95%. See here, the indigo trade grew more and more commercial for the agents as well as for the officials of the company. So they himself or itself investing in indigo productions. Over the year, many company officials left their jobs. See here what was the result of this indigo proportion increasing day by day for the import of the indigo to Britain from India. What was the results here? See this one. Over the years, many company officials left their jobs. Why? Only for the purpose of the cultivation, to look after their indigo business. अपना पर्सनल इंडिगो बिजनेस उन कंपनी ऑफिशियल्स ने शुरू कर लिया था, और इसी पर्पज से हम क्या कहते हैं बच्चों, कि कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने कंपनी की जॉब लेफ्ट कर दी, and they took interest in the cultivation of the indigo. बहुत बड़ा चेंज आ रहा था उस समय. हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? अब ये चेंजेस आ रहे हैं, बट मेन पर्पज है कि इंडिगो कल्टिवेट कैसे होता है. सी हेयर द प्रोसेस. There were two main systems of indigo cultivation. First one is Nij and the second one is Rioty. See what is the difference between Nij and Rioty here? Within the system of Nij cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly control. जिसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है लैंड के ऊपर, वो खुद जब इंडिगो कल्टीवेशन के लिए प्लांटेशन करता है, दैट वाज कॉल्ड Nij on that time.
द प्रॉब्लम विद निज कल्टिवेशन क्या क्या हो सकती है? सी हेयर, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन. वाई? बिकॉज दे हैव some limited area or some limited part of the land for the cultivation of indigo, so they were not in a position to expand the area of the cultivation. This was the main major problem for the niche cultivation. Indigo could be cultivated only on fertile lands, and see here what type of land was needed for the purpose of the cultivation of indigo. Fertile land was needed for the purpose of the cultivation of indigo, and these were all already densely populated. लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो भी ऐसा था फर्टाइल लैंड का एरिया था वो तो ऑलरेडी क्या हो चुका था, ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था. वहाँ पे ऑलरेडी जो पब्लिक है, जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे रह रही थी. सो व्हाट हैपेंड? A large plantation required a vast number of hands to operate. तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न क्या हुआ कि अगर आपको लार्ज प्लांटेशन करना है, फॉर दैट पर्पज यू रिक्वायर्ड वेस्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट. बहुत ज़्यादा लोग होने चाहिए ताकि आप उसे इजीली ऑपरेट कर पाएँ. And labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. See, the another important reason for this one is कि जो labor है वो तो already preciously time ले चुकी थी. For what? Peasants जो हैं वो already rice cultivation में busy थे, and indigo cultivation also needed so much hands for the cultivation of indigo. सो व्हाट हैपेंड? पीजेंट्स तो जब राइस कल्टीवेशन में बिजी हैं तो एक जना एक ही तरफ हो सकता है बच्चों, वह दूसरी तरफ नहीं हो सकता है. तो इसका क्या रिजल्ट रहा? टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. See here क्या हुआ, 19th century तक जो प्लांटर्स हैं वो रिलक्टेंट हो चुके थे for the expand of the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. और हम क्या देखते हैं, 25% से भी कम जो लैंड था वो इंडिगो सिस्टम के अंतर्गत आ पा रहा था. सो दिस वॉज द निच कल्टिवेशन. द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन, द रियोटी सिस्टम. और हम देखते हैं 25% तो किस में गया बच्चों? फॉर द पर्पज ऑफ निच कल्टिवेशन, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड किस में गया है? फॉर द पर्पज ऑफ रियोटी सिस्टम में. एंड व्हाट इज दिस रियोटी सिस्टम? सी हेयर, यहाँ पे देखिए इंडिगो का जो प्लांट है, इंडिगो है, वो लैंड पे कैसे रियोट्स के द्वारा लगाया जा रहा है. सी, वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th century, एंड दिस पिक्चर वॉज टेकन फ्रॉम कॉलेजवर्दी ग्रांट. और यहाँ पे देखिए बंगाल में कैसे यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग हो रही है इंडिगो की. Okay, see here under the Rioti system, what happened under the Rioti system? See here, the planters proposed the riots to sign a contract, an agreement. सत्ता जिसको हम बोलते हैं. यहाँ पे क्या हुआ, रियोटी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो प्लांटर्स है उनको फोर्स किया जाता था किसके लिए? द रियोट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट. एक तरह से सत्ता के लिए उनसे सिग्नेचर करवाया जाता था, समझौते के ऊपर उनसे सिग्नेचर करवाए जाते थे. एट टाइम्स दे परसुएड द विलेज हेडमैन टू साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रियोट्स. और यहाँ पे क्या हुआ, कई समय पे कई बार क्या होता था, व्हेन द विलेज हेडमैन वाज देयर, सो ही विल साइन अंडर द सरकमफ्रेंस और अंडर द बिहाफ ऑफ द रियोट्स. जितने भी हम पीजेंट्स कह रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं बच्चों उनको, हम यहाँ पे उनको कह रहे हैं रियोट्स. तो रियोट्स की तरफ से कौन साइन कर रहा है? यहाँ पे जो विलेज हेडमैन है वह साइन कर रहे हैं.
Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo. And what was the purpose of the assignment or contract between them? The main purpose was that the person who signed this agreement had given some advance, cash advance. Why? From where? किसके द्वारा दिया गया? फ्रॉम द प्लांटर्स. फ्रॉम वेयर? बंगाल में हो रहा था यह काम. एंड प्लांटर्स क्या कर रहे थे? एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो. इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए कैश एडवांस में दिया जा रहा था. किसके द्वारा? प्लांटर्स के द्वारा. कहाँ पे? बंगाल में. किस लिए? फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो. सी हेयर द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री. जब पूरा प्लांटेशन हो गया, प्रोसेस ओवर हो चुका, तो उनके कटिंग्स करने के बाद में क्या हुआ? उनको यू कार्ट्स में डाल डाल के कहाँ ले जाया जा रहा है? फैक्ट्री के लिए ले जाया जा रहा है. सी हेयर एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन इन द ईयर 1863. 1863 का ये एक फैक्ट्री का पिक्चर है. देखिए बच्चों, एंड सी द पिक्चर हेयर. दीज वर्कर्स वर डूइंग द लेबर प्रोसेस एंड सी हेयर अलग अलग इन्होंने ब्लॉक्स बना रखे. उन ब्लॉक्स में जो भी क्रॉप आ रही है उसको पुटअप करके फाइनल प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है. When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the riot and the cycle started all over again and again. See, कैसे एक जो रियॉट है, एक जो ग्रामीण है, या हम कह सकते हैं एक जो किसान है, कृषक है, वो कैसे परेशान हो रहा था. पहले तो उसे कल्टीवेशन के लिए, इंडिगो क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट पे कैश दिया गया. ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट. लो इंटरेस्ट रेट क्यों हुआ? फॉर द पर्पज ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो. बट अगेन एक और उनको लोन डिलीवर किया गया. बाय होम? बाय द प्लांटर्स. फॉर व्हाट पर्पज? फॉर द पर्पज ऑफ द again delivered the crop to the planters for the harvesting process. तो हार्वेस्ट होने के बाद में नया लोन दिया जा रहा है अगेन फॉर द सेम साइकिल फॉर द पर्पज ऑफ द इंडिगो. टू होम? फॉर द रियॉट्स पीपल. और रियॉट्स के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया था. क्यों हो गया था बच्चों? आप एक बार लोन ले रहे हैं, आप उसको पे भी नहीं कर पाएंगे. अगेन द अनदर लोन वॉज इशूड टू द रियॉट्स एंड अगेन द सेम प्रॉब्लम अराइजेस फॉर द पेमेंट्स ऑफ द इंडिगो cash loans. So peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. और यहाँ पे जो peasants हैं उनको समझ में आ गया था कि ये जो रियॉट सिस्टम है ये कितना मुश्किल भरा है. They were allotting the loans to the peasants, but at present situation हम क्या देखते हैं? जब यहाँ पे peasants को हकीकत पता चली थी बच्चों, on that time see what happened. The peasants were initially tempted from all that situation of the rioti system. Indigo moreover had deep roots and it exhausted the soil rapidly. एक तो हुआ पीजेंट को कैश लोन देके उनका जो मोरल है वो डाउन हो गया बिकॉज दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू पे दैट अमाउंट बैक टू द प्लांटर्स. अगेन द मेन सेकंड रीजन फॉर दिस वन इज दैट आफ्टर इंडिगो कल्टिवेशन सी व्हाट हैपेंड टू द सॉइल. द फर्टिलिटी रेट ऑफ द सॉइल वाज रैपिडली एग्जॉस्टेड एंड फॉर दैट पर्पज दूसरा कोई आप जो फसल है वो कल्टीवेट कर ही नहीं पा रहे थे. और जब रियॉट्स या पीजेंट्स की हम बात करते हैं कि वो दूसरा फसल नहीं कल्टीवेट कर पा रहे थे. सो व्हाट हैपेंड ऑन दैट टाइम? सी आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस. आप एक बार इंडिगो की फसल कर लेंगे लेकिन दूसरी बार आपको राइस की फसल नहीं कर पाएंगे. वाई? सॉइल की फर्टिलिटी रेट ही फिनिश हो गई है. एंड व्हेन दिस रेट वाज फिनिश्ड हाउ सॉइल कल्टीवेटेड द राइस अगेन. सॉइल में ऐसे कितना उनका फर्टिलिटी रेट होगा कि वो राइस को प्रोडक्ट कर पाए. सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इंडिगो फसल के बाद में नो राइस हैड गिवन सम इनपुट टू द
शॉपकीपर्स और इनडायरेक्टली टू द पीजेंट्स, क्योंकि पीजेंट्स कुछ राइस को उगाएंगे तभी तो वो शॉपकीपर्स को देंगे बच्चों. व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस चैप्टर वी विल कंक्लूड इन द नेक्स्ट पार्ट. सो स्टे विद अस बिकॉज दिस मैटर was so much crucial for the peasants purpose, was so much crucial for the purpose of the Britain also, for so much crucial for the purpose of the East India Company. But what was the cruciality on that time? So we will conclude it in the next part. Stay with us. Thank you.